உங்க விசுவாசம் தானாவே வெளிப்பட்டுரும். आपका विश्वास अपने आप बाहर दिखाई அப்படி देगा। விசுவாசம் வரும்போது சுகமாயிருக்குன்னு அர்த்தம். वो विश्वास अगर आपको आ गया तो इसका मतलब है कि आपको चंगाई मिल உங்க गया। இருதயமே அதுக்கு சாட்சி கொடுக்கும். आपका हृदय खुद उसके लिए गवाही देगा। அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு விதமா தடப்பட்டே கிடக்கும். नहीं तो आपके मन में वो जलजलाहट होते रहेगी। ரெண்டு விதமா ஓடிக்கிட்டே கிடக்கும். दो तरफ का आपका सोच विचार चलते रहेगा। அது சுகமாகாது. वो आपको चंगाई भी नहीं होगी। ஒரு மனுஷன் एक इंसान 15 வருஷமா மருந்தே சாப்பிடல. 15 साल वो दवाई खाया नहीं, மருந்து சாப்பிடாமலே கிறிஸ்து விசுவாசத்தோட ஓடுறான். बिना दवाई खाए विश्वास में मसीह के अंदर दौड़ रहा है। காய்ச்சல் வந்தாலும் டாக்டர் போக மாட்டான். अगर उसको बुखार भी आया तो वो डॉक्टर के पास नहीं எந்த जाता। வியாதி வந்தாலும் டாக்டர் போக மாட்டான். कोई भी बीमारी क्यों ना आए वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। 15 வருஷம் 15 வருஷம் தாண்டிட்டு 15 साल बीत गए அவன் மரண படுக்கையில போயிட்டான். और वो मृत्यु के कहर पर चला गया அவனுக்கு சுகமே ஆக மாட்டேங்குது. और उसको चंगाई मिल नहीं रहा है जो बीमारी आया। குடும்பத்துல எல்லாரும் சொல்றாங்க परिवार में सब बोल रहे हैं उसको நீ ஆஸ்பத்திரியில போ அப்படின்ட்டு. कि तू जो जाके हॉस्पिटल में जाके दिखा। நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மாட்டேன். वो कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ஆனா சுகமாக மாட்டேங்குது. पर उसे ठीक भी हो नहीं रहा है மரணமும் வர மாட்டேங்குது. और ना मृत्यु आ रहा है उसको, ரெண்டுலயே கிடந்து தடுமாட்டி நடக்கிறான். और दोनों तरफ वो रहकर पछता रहा இப்ப था। அந்த மனுஷனை இதயத்தை அறிஞ்சது யார்? अब वो इंसान का हृदय को जानने वाला कौन है? இயேசு மச்சி தான் அந்த இதயத்தை அறிய முடியும். वो यीशु मसीह उसके हृदय को देख सकता இதை है। வெளிப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு யார் போன்றிருக்கு? और इसे प्रकट करके देने के लिए किसको जाना ஒரு होता है? தீர்க்கதரிசி போன்றிருக்கு. एक भविष्यवक्ता जाना होता है उसके पास। அப்படியே ஒரு தீர்க்கதரிசி அந்த வீட்டுக்கு போறாரு. तो उसी तरह एक भविष्यवक्ता वो इंसान के घर पे அப்ப जाता அந்த है ஆள்கிட்ட பேசுறாரு, और वो इंसान से நீ बात ரெண்டு करता है மனமா கிடக்குற, அதனாலதான் ஆண்டவர் உனக்கு சுகப்படுத்த மாட்டேங்கிறாரு. कि तेरा दिल में दो तरह के विचार चल रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर चंगाई नहीं दे எனக்கு रहे तुझे। சுகமாவ நான் செத்து போன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற. तू सोच रहा है कि मुझे चंगाई नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, ஆனா ஆளு முன்னாடி நான் சுகமாவேன்னு சொல்றேன். पर सबके सामने तो कहता है कि मैं चंगाई हो जाएगा मुझे। தூக்கி கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில போட்டாங்க. तो उसे लेके जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किए சுகமாயிட்டான். और वो ठीक हो गया। ஆண்டவர் எடுக்க வேண்டிய நேரம் கிடையாது அப்ப. परमेश्वर उसे उठा लेने का वक्त आया नहीं है, அதனாலதான் ஆஸ்பத்திரியில கொண்டு சுகப்படுத்துறாரு. इसीलिए हॉस्पिटल लेके जाके उसे ठीक करते हैं। செத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவர் சுகமாக்குற எண்ணம் உள்ளத்துல இருந்தனா, अगर मैं मर भी गया तो भी परवाह नहीं, पर परमेश्वर चंगाई देंगे करके वो विचार रहा, இந்த விசுவாசம் இருந்தா சுகப்படுத்திடுவாரு. वो विश्वास आपके पास रहा तो परमेश्वर चंगाई दे அந்த देंगे। மனுஷனுக்கு 15 வருஷமா விசுவாசத்தை கொடுத்தாரு. उस इंसान को 15 साल परमेश्वर ने विश्वास दिया। 15 வருஷம் கழிச்சு ஏன் அந்த ரெண்டு மனம் வந்துச்சு? 15 साल के बाद उसे दो मन क्यों हो गया उसका? நம்ம யாராவது நினைச்சு பார்க்கணும். हम सोचकर देखना चाहिए। 15 வருஷம் சுகம் கொடுத்த தேவன் 15 साल परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, இதுல ஏன் இவருக்கு சுகமாக மாட்டேங்குது? पर 15 साल के बाद वो बीमारी क्यों नहीं ठीक हुआ? விசுவாசம் பரிசுக்கப்படுது, ஞாபகம் வச்சுடுங்க. क्योंकि विश्वास जो है उसे तोला जा रहा है। மருந்து சாப்பிட்டாலும் ஆண்டவர் மேல விசுவாசமா இருக்கணும். दवाई भी अगर खाएंगे पर भी आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த விசுவாசத்தால தான் அவனுக்கு அந்த விசுவாசத்தை கொடுக்கல. ये विश्वास के वजह से ही वो विश्वास को परमेश्वर ने नहीं दिया। நம்ம எண்ணங்கள் நிறைய பேருடைய எண்ணம் அப்படித்தான் இருக்கு. आज हमारा சரி, सबका सोच विचार भी நம்ம वैसे ही है। செய்திக்குள்ள போவோம். हम संदेश के अंदर जाएंगे। ஓய்வு நாள் முடிந்த முதல் வாரத்தில் விடிய காலையில் யார் போறாங்க? முதல்ல सबसे पहला वचन पढ़ो। सप्त के दिन के बाद हाँ। सप्ताह के पहले दिन हाँ। पे फटते ही मरियम मगदलीन और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। पहला मुदा यार போறா சந்திக்க? सबसे पहला कौन मिलने जा रहा है? ஸ்திரீ. பாத்துடுங்க, एक स्त्री मिलने जा रही है। பாத்துடுங்க, இயேசு கிறிஸ்து சந்திக்க யார் போறது? यीशु मसीह को मिलने के लिए कौन जा रही அவர் है? எங்க என்ன பண்றாருன்னு பாக்குறதுக்கு யார் போனா? वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं देखने के கல்லறையில लिए कौन, இருக்காரா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு யார் போறா? कब्र में पड़े हैं या नहीं देखने के लिए ஒரு कौन जा रहा ஸ்திரீ है? தான் போறா. एक स्त्री जा रही है। இயேசு கிறிஸ்துவோட இருந்து ஊழியத்துக்கு பங்குவாளா இருந்து யாரு? यीशु मसीह के साथ रहकर उसके कार्यों को चलाने वाला कौन था? யார் தெரியுமில்ல? நிறைய ஸ்திரீகள் தான் இருந்தாங்க. ज्यादातर स्त्रियां थी। இன்னைக்கு நிறைய சபையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா आज बहुत सारे कलीसिया को अगर आप देखेंगे ஸ்திரீகள் தான் நிறைய இருப்பாங்க. स्त्री लोग ही ज्यादा होंगे। ஏன் தெரியுமில்ல? क्यों? ஸ்திரீகளுடைய வாயின் வார்த்தை எல்லா இடத்துலயும் பிரசங்கம் பண்ணிடுவாங்க. क्योंकि स्त्री लोग का जो वचन मुंह से निकलता है वो शब्द वो सभी तरफ जाता है। உடனே போய் சொல்லிடுவாங்க, वो तुरंत एक दूसरे के पास जाकर बोल देते हैं। நான் அந்த சபைக்கு போனேன்,
मैं कलीसिया में गया था, எனக்கு गई थी। ஆண்டவர் அதை செய்தாரு, परमेश्वर ने मुझे ऐसा चंगाई दिया, இதை செய்தாரு. परमेश्वर ने मुझे ऐसा चंगाई இவங்க दिया। சுவிசேஷத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. स्त्रियां सुसमाचार बताते रहती ஆனா हैं, ஆம்பளைகள் என்ன திரும்ப செய்வாங்க? पर भाई लोग क्या करते हैं, உள்ள வச்சுக்கிட்டு அடக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. उनके अंदर रखे उसे दबा देंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। உண்மைதானே? वो सच है कि ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க உடனே, कुछ भाई लोग भी जाकर सुसमाचार ஆனா बताते हैं, ஸ்திரீகள் வந்து உடனே சொல்லுவாங்க. पर स्त्री लोग जो है वो तुरंत बता देते हैं அங்க एक दूसरे சந்திக்க को, போறது யார் தெரியுங்களா? क्योंकि वो मिलने जो गया वो कौन है, மரியாளும் மாத்தாளும். वो मार्था और मरियम थी। இல்ல மரியம் மட்டும்தானே வரும். मगदलिन मरियम और दूसरी मरियम, एक मरियम மரியம் मगदलिन। இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் போறாங்க. மரியாள் அப்ப அங்க போகும்போது அங்க யாரும் இல்ல, वहां पर जब वो गए तो वहां पर कौन नहीं था, கல்லறையில இயேசு கிறிஸ்து இல்ல. वो कब्र में यीशु मसीह का शरीर என்ன था ही नहीं। பண்ணாரு? कहाँ गए, क्या किए உயிர் थे, தெழுந்து விட்டார். क्योंकि वो जिंदा हो गए இந்த थे। உயிர் தெழுந்த வல்லமை பவுல் நினைக்கிறான், ये पौलुस सोचता है कि ये जो जिंदा होने का जो महिमा है, பிலிப்பியர் फिलिप्पुस का किताब 3:10-12 எடுங்க பாப்போம். நம்ம 3 अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। டைம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, சிம்பிள் தான், ரொம்ப வசனம் கிடையாது, வசனம் वक्त கிடையாது. कम है और फिलिपियों 3:10-12 ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। பாத்துக்கிடுங்க, பிலிப்புக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு, ये फिलिपुस को एक सोच विचार था, இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலும் வல்லமையும் इस तरह मैं उसको और उसके मृत्युजय होने का सामर्थ्य को, அவருடைய பாடுகளை என்ன செய்யணும் அவனுக்கு வேணும், அந்த பாடுடைய ஐக்கியப்பட்டிருக்கிற அப்படிங்கிறாரு. उसका जो दुखों में मैं सहभागी होने के मर्म को जानने के लिए, वो அந்த அறிவுக்காக वो जानने के लिए எப்படி ஆயினும் நான் என்ன செய்யணுமா, कैसे भी मैं क्या करना चाहिए, நானும் உயிர்த்தெழுதலே அவருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. ஞாபகம் तो मैं भी जी उठना है करके उसको एक सोच विचार आया। பவுலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன், पौल एक बहुत अच्छा सेवक था, கிறிஸ்துவின் பாடுல நானும் ஐக்கியப்பட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறான். मसीह के दुखों में मुझे भी सहभागी होना है करके उसका सोच विचार था। அந்த பாடுபட்டு वो दुखों को उठाकर நான் என்ன செய்யணுமா, நானும் मैं क्या करना चाहिए, உயிர்த்தெழணும், मैं भी जी उठना चाहिए। இந்த எண்ணம் அவருக்கு தேவைப்படுது. ये सोच विचार उसके अंदर था। பாத்துக்கிடுங்க, இயேசு கிறிஸ்து देखिए यीशु मसीह को சிலுவையில அரைஞ்சி क्रूस में मारकर அந்த கல்லறையில வைக்கும் போது वो कब्र में जब ले जाकर रखे அவருக்கு என்ன போட்டாங்க, பெரிய முத்திரை போட்டாங்க. तो उसको एक बहुत बड़ा चिन्ह जो है वो डाले उनके ऊपर, தெரியுமா? பெரிய கல்லை கொண்டு வச்சு एक बहुत बड़ा पत्थर को ले जाकर रखकर என்ன பண்ணிட்டாங்களா, उन्हें क्या किए, 27-66 வாசிக்க பார்ப்போம். मत्ती का किताब 27वां अध्याय அதுல 66 லாஸ்ட் वचन 66वां वचन। हद में पेरू को साथ लेकर गया और पत्थर पर मोहर लगाकर, பாத்துடுங்க, பெரிய பத்தரை கொண்டு வச்சு एक बहुत बड़ा पत्थर को ले जाकर அதை रखकर முத்திரை போட்டாங்க. और उसमें मोहर लगा दिए। ஏன் முத்திரை போட்டாங்க தெரியுமா? क्यों ये सील को रखा उन्होंने? இயேசு கிறிஸ்து பூமியில இருக்கும்போது यीशु मसीह जब ये संसार में थे, நான் மரிச்சு 3ஆம் நாள் என்ன செய்வேனா, मैं मरकर तीसरा दिन क्या होऊंगा, உயிர் தெழுவேன், मैं जी उठूंगा। இத சொல்லி இருந்தாரு. इसे वो बोले थे இவங்க வந்து அந்த சந்தேகத்துல और ये जो लोग जो सुने उसे वो शक के कारण முத்திரை போட்டு வச்சிருந்தாங்க. उन्होंने वो मोर को लगा दिया उनके முத்திரை ऊपर। உடைச்சு யார் தெரியுங்களா? और ये मोर को तोड़ा किसने? தேவதூதர்கள் உடைக்கிறாங்க. परमेश्वर का दूत वो मोर को तोड़ते हैं। பாத்துடுங்க, वापस 1-2 पढ़ो, 1-2 1-2 शब्द के दिन के बाद हाँ सप्ताह के पहले हाँ। दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई हाँ। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ वो पढ़ा और क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा हाँ। पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। பாத்துடுங்க, देखिए அப்பொழுது பூமி तब ये धरती पे
பயங்கர அந்த வெடிப்பு வந்துருச்சு, பூகாமம். एक बहुत बड़ा भूकंप आया வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன் இறங்கி வாரா, और आसमान से एक देवदूत उतर कर आता அந்த है கள்ளத்துக்கு தூர போடுறான். और वो जो पत्थर लगाया हुआ था उसे लेकर फेंक देता है। இந்த கல்லை யாருமே மனிதனால் தள்ள முடியாது. वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसे कोई इंसान उठा नहीं सकता அப்பேற்பட்ட था। கல்லை கொண்டு அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. उतना बड़ा पत्थर को ले जाकर वो कब्र को बंद किए அதை थे உடைச்சிட்டு और वो पत्थर को तोड़कर பாத்துருங்க, காவலர்கள் அதை கண்டு பயப்படுறாங்க. और ये जो रखवाले थे उसे देखकर डर गए சத்தவனை போல விழுறாங்க. और जैसा लोग मरकर गिरते हैं वैसे वो बेहोश होकर गिर गए। ஏன் அவர் யார் தெரியுங்களா? क्योंकि वो कौन है? அவர் தேவாதி தேவன். क्योंकि वो परमेश्वरों का ஜனங்கள்லாம் परमेश्वर நினைச்சாங்க है। वो सब वहां के सभी लोग ने सोचे இவர் மனிதன், कि ये केवल इंसान है। இவ்வளவு அற்புதம் செய்த போதிலும் इतना चमत्कार करने के बावजूद இவரால இவரை பாதுகாக்க முடியலையே. ये खुद को ही नहीं बचा सके। இத நினைச்சு அவரை கொண்டு அடைச்சு வச்சாங்க. ऐसा सोचकर उन्हें ले जाकर कब्र में बंद कर दिया। ஆனாலும் ஒரு டவுட், पर फिर भी उनके अंदर एक शक था இவங்க சீசர்கள் வந்து திருப்பி எடுத்து போயிருவாங்கன்ட்டு. कि हो सकता है कि ये यीशु मसीह का चेले लोग इनके शरीर को चले जाएंगे முத்திரையை உடைக்க முடியாக कि इसके लिए मोहर को तोड़ने के लिए யார் வந்தா? कौन आए? தேவதூதர்கள் இறங்கி வராங்க. परमेश्वर का दूत लोग उतर कर आते இறங்கி हैं। வந்து ஆண்டவர் வெளியே வராரு. उतर कर आने के बाद परमेश्वर कब्र से बाहर आते हैं முதல்ல சந்திக்கிற யாரு? और उन्हें सबसे पहला मिलता कौन है? ஸ்திரீ. दो அஞ்சு स्त्रियां। அஞ்சு வாசிங்க பாப்பா, அஞ்சு வாசிங்க. पांचवा वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ। मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूँ हाँ। तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था हाँ। ढूंढती हो। அவரை தேடுறீங்களா நீங்க? उन्हें आप ढूंढते हो क्या? இன்னைக்கு பாருங்க, அவரை தேடுறீங்களா? आप ढूंढते हो क्या उन्हें? உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம்ம தேடிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. जिंदा हुआ यीशु को हमें ढूंढना है यार। இவர் யாரு? ये कौन है? நம்முடைய மணவாளன். हमारा दुल्हन है। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்திரீ சபை பாத்துடுங்க. ये स्त्री जो है ये कलीसिया होती அந்த है। ஸ்திரீ யாரை தேடுது? वो स्त्री किसे ढूंढ रही है? உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தேடுது. जिंदा हुआ यीशु मसीह को ढूंढ रही है। பாத்துடுங்க, ஆரோ வாசிங்க. या छठवां वचन पढ़ेंगे। वे यहाँ नहीं है हाँ। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। அவர் எங்க போயிட்டாரா? वो कहाँ चले गए? தன்னுடைய சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி எழும்பிட்டாரு, உயிர்த்தெழுந்தார். उनका जो कहा गया था वो वचन के अनुसार वो जिंदा हो गए। இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கொண்டு நிறைய பேர் என்ன செய்றாங்க? आज ये वचन को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? பரியாசம் பண்றாங்க. बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। நிறைய பேர் என்ன செய்றாங்க? बहुत लोग क्या करते हैं? உலகத்துல பரியாசம் பண்றாங்க. संसार में निंदा करते हैं இவர் दूसरों को உயிர்த்தெழுந்ததெல்லாம் பொய். कि ये जो जिंदा हुए वो सब झूठ है। ஆனா விசுவாசிக்கிறவன் என்ன செய்வான்? ஆக்கினிக்குள்ள போயிருவான். पर ये जो विश्वास नहीं करने वाला वो अग्नि में चला जाएगा। பைபிள் பத்தாத, பைபிள் சொல்லுது, ये कलाम कहता है யாரு விசுவாசிக்கலையோ जो इसे विश्वास नहीं अब करता एंगे है போவா? वो कहाँ पर जाएगा? ஆக்கினி தண்டனைக்கு போயிருவான். ஞாபகம் वो வச்சிருங்க. आग में झोंका जाएगा। ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு என்ன தேவை? पर आज हमारे लिए क्या चाहिए? இத வச்சு நமக்கு என்ன தேவை? इसे रखकर हमें क्या चाहिए? நம்மளும் உயிர்த்தெழுதல வரணும். हमें भी ये जी उठने में आना है। ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்தாருன்னா परमेश्वर जी उठे हैं நீங்களும் நானும் உயிர்த்தெழுதல வரணும். तो आप और मैं भी ये जी उठने में आना है। இதுதான் मेन வார்த்தை. यही सबसे मुख्य चीज है। இது பெரிய பிரசங்கம் கிடையாது. ये बहुत बड़ा सुसमाचार नहीं है। அதுமே இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். देखिए यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए। அவரை உயிர்ப்பித்த அந்த ஆவி उनको जो जिंदा किया वो आत्मा பவுலுக்குள்ள இருந்துச்சு. पौलुस के अंदर था। பவுல் சொல்றான், पौलुस कहता है நானும் அந்த பாடல ஐக்கியப்பட்டு कि मैं भी वो दुख में सहभागी होकर நானும் உயிர்த்தெழுதணும். कि मैं भी जिंदा होना चाहिए। நமக்கு பாடுகள் வரும், ஞாபகம் வச்சிடுங்க. तो हमें तकलीफें आएगी ஆனா அந்த உயிர்த்தெழுதல ஆவி உங்களுக்குள்ள இருந்தா पर वो जिंदा जिलाने वाला आत्मा अगर आपके अंदर होगा உங்களுக்கு என்ன செய்யாது? तो आपको क्या नहीं होगा? பாடு தெரியாது. आपको वो तकलीफ महसूस नहीं होगा। 2 கொரிந்தியர் 2 कोरिन्थियों का किताब 3:18 वासिंगा. 3:18 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियर दूसरा कोरिन्थियों का किताब 3:18। परंतु जब हम सब के अघोड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हाँ। हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश करके बदल जाते हैं। பாத்துடுங்க, देखिए நம்ம எல்லோரும் हम सब திறந்த முகமாய் उगाड़े चेहरे से என்ன பண்ணுமா? क्या? தேவனுடைய சாயலை காணணுமா? प्रभु का प्रताप को ढूंढना चाहिए। எப்ப சாயலை காண முடியும்? कब हम उनका प्रताप को ढूंढ सकते இந்த हैं? அபிஷேகம், இந்த உயிர்த்தெழுத வல்லமை உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது ये जी उठने वाला जो महिमा है वो अगर आपके अंदर होगा तब आप ढूंढ पाओगे। நம்ம இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவிக்காக ஜெபம் பண்றோம். हम आज पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। ஜெபம் பண்றோமா இல்லையா? प्रार्थना करते हैं या நம்ம नहीं करते? கேட்கிறோம்,
हम पूछते हैं இந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை நமக்குள்ள வந்துச்சுன்னா ये पवित्र आत्मा का महिमा अगर हमारे अंदर आ गया तो எப்படி ஒரு கண்ணாடி முகத்துல நம்ம கண்ணாடியில நம்ம முகத்தை பார்க்கிறோமோ जिस तरह हम आईने में हमारा खुद का चेहरा देखते हैं அந்த ஆவியின் அச்சாரத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். उस तरह वो आत्मा का जो साया है उसे हम देख सकते हैं. பாத்தீங்கன்னா அதுல 17 வாசிங்க 17 पढ़ो. उसमें 17 वचन को पढ़ेंगे. प्रभु तो आत्मा है हाँ और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है हाँ वह स्वतंत्रता है. பாத்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய ஆவி देखिए जहां पर भी परमेश्वर का आत्मा எங்கேயோ जहां पर भी है உதர் எங்க அங்க என்னது वहां पर क्या है விடுதலை அப்படிங்குது. वहां पे स्वतंत्रता है करके कहता है. हालेलुया हालेलुया. ஒருத்தருக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவி இருந்தனா एक जन के अंदर अगर मसीह का आत्मा होगा உங்களுக்கு தானாவே விடுதலை. तो आपको अपने आप स्वतंत्रता आ जाएगा आपके अंदर. ஓ பென் அந்த சிஸ்டர் சார்ஜ் சொன்னாங்க वो बहन जी ने यहाँ पर आके गवाही दी है அவங்க வீட்டுக்காரருக்கு உடம்பு தெரியல कि उनका पति को बीमार थे ஆனா அவங்களுக்குள்ள இருந்து ஆண்டவர் என்ன செய்றார் ஜெபிக்கிறார். पर उनके अंदर से परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं. ஏன் அந்த ஆவி என்ன செய்யுது क्यों वो आत्मा क्या करता है ஏவி ஜெபம் பண்ண வைக்குது. वो हर रोज प्रार्थना करने அந்த रखता ஆவி है. தாங்க சுகப்படுத்துது. वही आत्मा वहां पे ஒரு चंगाई भी விஷயத்தை देता है. ஆண்டவர் விசுவாசத்தை கொடுத்தாரு. एक तरफ परमेश्वर विश्वास को देते அந்த हैं. விசுவாசத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் वो विश्वास को हमें क्या करना है அப்படியே வளரணும். वो विश्वास के अंदर हमें बढ़ना அந்த है. ஆவில வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். वो आत्मा में हमें बढ़ना है. நீங்க சோர்ந்துட கூடாது. आप लोग को थक नहीं जाना चाहिए. பாத்தீங்க அந்த விசிட்டு சுகம் கொடுத்தாரு. देखिए ये चीज में परमेश्वर ने चंगाई दे दी है. இன்னொரு बीमारी வருது. और एक बीमारी आता है आपको. விசுவாச பரிச்சை வர ஞாபகம் வச்சிடுங்க. ये विश्वास को परख के देखते हैं परमेश्वर. பச்சளுக்கு பிள்ளைகள் வந்து படிக்க போறாங்க. अभी बच्चे लोग जो है वो पढ़ाई करने जाते ஆனா हैं எக்ஸாம் स्कूल. வருதா இல்லையா? वहां पर एग्जाम आता है या नहीं आता है? எக்ஸாம் வருது இல்ல எதுக்கு? एग्जाम क्यों आता है? நீங்க அதை எழுதி என்ன செய்யணும்? एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे लोग பாஸ் ஆக வேண்டியிருக்கு. लिखकर पास होना पड़ता है. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர். उसी तरह परमेश्वर भी आपको एक एग्जाम देते हैं. அவர் சொல்றாரு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தாலும் சரி वो कहते हैं कि एक राई के दाने के जितना भी विश्वास होगा நீங்க என்ன செய்ய முடியுமா? तो आप क्या कर सकते மலையை हो? பார்த்து போக तो படிக்கிறார். वो पहाड़ को अगर आप जाने बोलोगे तो वो चला जाएगा. பெரிய விசுவாசம் கிடையாது. बड़ा विश्वास नहीं चाहिए. சிம்பிள் விசுவாசம் சிம்பிள். विश्वास बहुत छोटी सी रही तो भी बस हो गया. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் ஒரு சிறு பிள்ளையை கொண்டு நிறுத்தாரு. तो इसीलिए परमेश्वर ने एक छोटे बच्ची को लेके जाकर खड़ा कर दिया மனம் திரும்பி ஒரு சிறு பிள்ளையை போல் மாறாவிட்டால் कि मन फिरा कर आप इस बच्चे के तरह नहीं बदलोगे தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க तो முடியாது. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर இந்த पाओगे. சிறு பிள்ளை விசுவாசம் எப்படி இருக்கும்? ये छोटे बच्चे का विश्वास किस तरह का होता எதை है? குறித்து சிந்திக்காது. वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती हैं बच्चे लोग. அதுங்க ஒரு சைக்கிள் நேத்து என் பேரன் ஒரு சைக்கிள் வாங்கியிருந்தான். देखिए मेरा पोते को कल एक साइकिल मिला வீட்டுக்குள்ள போன உடனே और घर के अंदर जाते ही தாத்தா இதரா नाना इधर आओ, मेरे को ये साइकिल लिया उसको प्रार्थना करो. मुझे ये साइकिल लिया है उसके लिए प्रार्थना करो. मैं बोला खाना खा के आता. नहीं नहीं पहले प्रार्थना करो. अभी उनको क्या विश्वास है? विश्वास क्या है? ये प्रार्थना करेगा तो मेरे को अच्छा रहेगा. खाना खाने के नहीं भेजा वो. अभी वो विश्वास से बुला रहा मैं खाना खा के जाना है. नहीं मैं ऐसे चला गया. ये विश्वास मेन मांगता है हर चीज में. ये छोटा छोटा चीज के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास. प्रार्थना से मांगना प्रभु से. देखो खाना खाएगा भी प्रार्थना करके खाना है. कोई खाता क्या ऐसा? हालेलुया. हालेलुया. खाना खाएगा भी क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके खाना खाना है. एक नया कपड़ा मिल गया है उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करके पहनना है. आमीन. प्रभु उसमें आशीष देता है. अभी घर में आदमी कमा के 10,000 देता है वो लेके प्रभु यीशु मसीह ये क्या करो इसको आशीष करके दो. ऐसा प्रार्थना करके रखेगा ना वो पैसा से कोई वेस्ट नहीं जाएगा. आमीन. मेरा औरत पहले ऐसे था अभी कैसे मालूम नहीं. पैसा देगा तो पहले क्या करता है? प्रार्थना करके रखता है. वो पैसा इतर पुतर जाएगा नहीं बीमारी आएगा नहीं. क्यों? प्रभु दिया है उनको प्रार्थना करके रखेगा ना वो. अभी ये गाड़ी लिया था पहला ये गाड़ी अभी मेरा पास्टर का लड़का का लेके आया. वो बोला प्रार्थना करो. हाँ प्रार्थना किया. ये अभी 100 साल तक रहना है. कितना भाई इतना बड़ा विश्वास करता है. मैं विश्वास करता है ऐसा प्रभु का बात विनंती रखना है. गाड़ी रहेगा भी कोई बीमारी नहीं आना चाहिए. हर चीज में प्रभु का साथ ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்? हर एक विषय में परमेश्वर को क्या करना அப்ப चाहिए? நம்ம அவரை சாயல பார்க்கணும் இருக்கு. तो हम परमेश्वर का साया को देखना எப்ப चाहिए. சாயல பார்க்க முடியும்னா कब आप उनके साया को देख सकते हो? இந்த உயிர்த்தெழுதலுடைய ஆவி ये जिलाने वाला जो आत्मा है நமக்குள்ள வரணும். वो हमारे अंदर आना चाहिए.
பவுலுக்குள்ள இருந்த அந்த வல்லமை ये पौलुस के अंदर ये महिमा था। பாடுகளை பத்தி பயப்படல, वो दुखों को देखकर डरा नहीं, அவன் பாடுகளை பத்தி பயப்படல, वो तकलीफों को देखकर डरा நான் नहीं। பாடுகளோட தேவனுடைய சாயலை வெளிப்படுத்துவேன். वो सोचा कि ये तकलीफों के साथ में परमेश्वर का आत्मा को प्रकट करूंगा, அப்ப நமக்கு பாடு இருக்காதா? तो हमें तकलीफ नहीं आएगा क्या? 6 दिन நம்மகிட்ட பாடு இருக்கும், हर एक दिन हमें भी तकलीफें நம்ம आएंगी, ஜெயிக்கிறோம். हमें जीतना है। ஏன்னா क्योंकि இந்த பூமியில இருக்கிறக்க ஆண்டவர் வைக்கலாம், क्योंकि ये संसार में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा ஆண்டவர் है। வரப்போறாரு. परमेश्वर आने वाले हैं। அந்த உயிர்த்தெழுதல வல்லமை உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கணும். वो जिलाने वाला महिमा आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए। எப்ப ஒரு சத்தம் கேக்குதோ जब उनका आवाज सुनेंगे हम, இங்கிருந்து என்ன செய்யும் அந்த ஆவி? यहाँ से वो आत्मा क्या होगा? அதை பார்த்து ஓடிரும். वो उससे उन्हें देखकर वो भाग जाएगा। அதுக்கு ஒரு கழுகு, देखिए एक गरुड़, ரொம்ப அழகான சிம்பிளான வார்த்தை, एक छोटा सा ये है, முட்டை முட்டை போட்டிருந்து एक उकाब जो है अंडा डाला था அது கீழே வந்துருச்சு. और वो नीचे आ गया, அது எங்க கோழி கூட்டுல வந்து வச்சிருக்காங்க பொரிக்கிறதுக்காக. और उसे एक मुर्गी का घोंसले में लेके जाकर रखा उसे बनाने के लिए, கோழியும் பொரிச்சிருச்சு, முட்டை கழுகு குஞ்சு வந்துருச்சு. और उस वहां से वो मुर्गी का बच्चे लोग भी आ गए और उकाब का बच्चे लोग भी आ गए। ஆனா அந்த அந்த கழுகு என்ன செய்யுதுன்னா, கழுகு குஞ்சு पर वो उकाब के बच्चे लोग ने क्या किया, அந்த கோழி குஞ்சோட மிக்ஸ் ஆக மாட்டேங்குது. और वो मुर्गी के बच्चों के साथ वो मिले जुले नहीं। बराबर बराबर इधर जानते ना, இந்த கழுகு குஞ்சு पर ये उकाब का बच्चे लोग கோழி குஞ்சோட சேர மாட்டேங்குது. ये मुर्गी के बच्चों लोग के साथ मिल रहे नहीं है, அது வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே திருது. और ये उकाब के बच्चे लोग आसमान को देख के ही फिर रहे हैं। கழுகு எங்க இருக்கும்? ये उकाब कहाँ पर होता है? சட்டான் கண்மலையில இருக்கு. वो चट्टान में होता है। ஆனா தாய் கழுகு இருக்குல்ல, पर ये जो उकाब का मम्मी है தன்னுடைய குஞ்சிய தேடுது. और वो उकाब के बच्चों लोग को ढूंढती है, ஒரு நாள் சத்தம் வருது, एक दिन आवाज आता है இது எட்டி பாக்குது. और ये उकाब के बच्चे लोग இது ऊपर எட்டி देखते பார்த்து हैं, அந்த சத்தத்தை கேட்டு பறந்து போயிட்டு, और उकाब का आवाज सुनकर ये उकाब के बच्चे लोग उड़कर उकाब के पास चले गए। நம்ம இயேசு கிறிஸ்து யாரு? हमारा यीशु मसीह कौन है? கழுகு. वो उकाब है, நம்ம யாரு? கழுகு குஞ்சு. और हम वो उकाब के बच्चे लोग ஒரு हैं। நாள் அவர் சத்தம் கொடுப்பாரு. एक दिन वो आवाज देंगे। இந்த பூமியோட நம்ம ஒட்டி இருக்க மாட்டோம். ये संसार के साथ हम चिटके नहीं रहेंगे, அதுக்கு அவரு கூடிய ஆவி நமக்குள்ள வரணும். तब उनका आत्मा हमारे अंदर आना எப்படி चाहिए। கழுகு குஞ்சியோட இணைதோ, जिस तरह ये उकाब के बच्चों के साथ मिल जाता है, கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்குள்ள இருக்கும்போது, जब अगर मसीह का आत्मा अगर हमारे अंदर होगा நம்ம உயிர்த்தெழுதல என்ன செய்றோம்? பெறுவோம். तो हम भी वो जिलाने वाले இது इसमें आ தேவை. जाएंगे। இன்னைக்கு பாத்துடுங்க. आज वो हमें चाहिए। பைலா கொரிந்தியர் पहला कोरिन्थियों का किताब 15 20 26 வாசிங்க. 15 20 20 और 26 26 को पढ़ेंगे। फटाफट. कहीं ऐसा ना हो कि 15 का पहला 15 20 और 26। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा हाँ और जो என் सो கண்ணுக்கு गए हैं, தெரிய மாட்டேங்குது. परंतु सचमुच சரிதான் 20. मसीह मुर्दों में से जी उठा है हाँ और जो सो गए हैं हाँ उनमें पहला फल हुआ, हाँ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य बीवी के द्वारा हाँ मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, हाँ और जैसा आदम के सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, हाँ परंतु हर एक अपने अपने भाई से हाँ पहला फल मसीह फिर मसीह के आने पर उसके लोग इनके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारी अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हाँ सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। आमेन. आमीन। देखो பைபிள் வேதம் சொல்லுது, ये कलाम कहता है கிறிஸ்து மரித்தொழுந்து எழுந்த நித்திரை அடைந்தவர்கள் முதல் பெறானவர். ये இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह மரித்தொழுந்து உயிர் தெழுந்த முதல் பலன். ये मरकर जी उठने के बाद का पहला फल யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. वो क्या है? यीशु मसीह है। மரிச்சு உயிர் தெழுந்தார். ये मृत्यु पाकर वो जिंदा उठ हुए। மற்ற பழைய ஏற்பாட்டுல 2 பேரும் மரியாம போயிட்டாங்க.
ये पुराने करार में दो लोग बिना मरे ही परमेश्वर के पास चले गए, பாத்துக்கிடுங்க அப்படியே போயிட்டாங்க. वैसे ही परमेश्वर ஆனா के पास இவர் யாரு? முதல் பலனானார். पर ये कौन है? ये पहला जन है। மனுஷனால் மரணம் பூமியில் உண்டானது போல் जैसा मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस संसार में आई, பாத்துக்கிடுங்க மரித்தோர் உயிர்த்தெழுது உண்டாயிற்று. ये मृत्यु மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் ये मनुष्य के द्वारा जैसा मृत्यु उत्पन्न हुआ, மனுஷனால் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுந்து உண்டாயிற்று. ये मनुष्य के द्वारा मरकर जिंदा होना भी हो गया। மரணம் सबसे पहला मृत्यु ஆதாம் மூலியமாக आदम के द्वारा பூமியில மனுஷனுக்கு மரணம் வந்துச்சு. ये संसार में मनुष्य को मृत्यु आई। இரண்டாவது மரணம் மனுஷனால் தேவனால் உயிர்ப்பிக்கப்படுறோம். ये दूसरा चीज ऐसा हो रहा है कि मृत्यु से हम जिंदा हो रहे हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। பாத்துடுங்க ஒரு மனுஷனால் மரணம் வந்துச்சு. एक मनुष्य जो आदम है उसके द्वारा मृत्यु आई, இரண்டாவது மனுஷனாகிய கிறிஸ்துவினால் और दूसरा मनुष्य यीशु मसीह के वजह से நம்ம என்ன செய்றோம்? हम क्या हो रहे हैं? உயிர்த்தெழுகிறோம். ஞாபகம் हम फिर வச்சிடுங்க. से जिंदा हो रहे பைபிள் हैं। சொல்லுது ये कलाम कहता है ஆதாமுக்குள் எல்லோரும் மரித்தது போல் आदम के अंदर जैसा सभी लोग मर गए, ஆதாம் மூலியமா எல்லாரும் மரிச்சாங்க. आदम के द्वारा सभी लोग ஆனா मर गए, கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் என்ன செய்றோம்? पर मसीह के अंदर हम सब क्या हो रहे हैं? உயிர்ப்பிக்கப்படுறோம். हम फिर से जिंदा हो रहे அல்லேலூயா. हैं। हालेलुया। இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு மரணம் கிடையாது. आज आपको और मुझे मृत्यु नहीं है, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு மரணம் கிடையாது. विश्वास करने वालों को मृत्यु नहीं है। நான் சொல்லல, பைபிள் சொல்லுது. ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कहता है ஆதாம் மூலியமா பூமியில மரணம் வந்துச்சு. आदम के द्वारा ये संसार में मृत्यु आई, இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக यीशु मसीह के द्वारा உங்களுக்கு என்னாச்சு? आपको क्या हो गया? உயிர்த்தெழுதல் வருது. ஞாபகம் வச்சிருங்க. आपको जिंदा हो गया। இயேசு கிறிஸ்து வந்த நோக்கம் என்ன தெரியுமா? यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? மதம் மாத்த வரல. அவரு आपका धर्म बदलने के लिए नहीं மனம் आए, திரும்பும்படியா வந்திருக்கிறாரு. मन फिराने के लिए आए। மனம் திரும்பி मन फिराकर எங்க போணுமா? कहाँ जाना है? அவர்கிட்ட போணும். उनके पास जाना है। இதுதான் விசுவாசம். यही विश्वास है, இதுதான் கிறிஸ்துவுடைய விசுவாசம். यही मसीह का विश्वास है। முத ஆதாம் நாள் மரணம் வந்துச்சு. पहला आदम के द्वारा मृत्यु आई, இரண்டாம் ஆதாமாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் और दूसरा आदम जो यीशु है, நம்ம எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுறோம். ஞாபகம் வச்சிருங்க. उनके द्वारा हम सब फिर से जिंदा हो रहे हैं। நம்ம எல்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுறோம். हम सब फिर से जिंदा हो रहे हैं। இந்த தியானம் நமக்குள்ள வேணும். ये ध्यान हमारे अंदर आना எந்த चाहिए। பாடு வந்தாலும் சரி, कोई भी तकलीफ क्यों ना है, இயேசு கிறிஸ்து என்னை எடுத்துக்கொள்வார். यीशु मसीह मुझे उठा ले। நாம் பரலோகத்துக்கு போனோம். मैं स्वर्ग राज्य में जाना है। இந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள இருந்தனா ये सोच विचार अगर आपके अंदर होगा உங்களை என்ன செய்யாது? तो आपको क्या नहीं होगा? மரணம் ஒண்ணும் செய்யாது. तो मृत्यु आपको कुछ नहीं பாத்துடுங்க, करेगी। பைபிள் சொல்லுது 23 வாசிக்கும் போது देखिए अगर 23वां वचन को अगर அவன் पढ़ेंगे, 23 அவன் தன் தன் வரிசையில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से முதல் பலனானவர் पहला फल मसीह, கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு फिर मसीह के आने पर அவர் வருகையில் उसके लोग, அவருடையவர்கள் உயிர்க்கப்படுவார்கள். इसके बाद अनंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारी अधिकार। பாத்துடுங்க, அவருடையவர்கள் தான் உயிர்ப்பிக்கப்படுவாங்களாம். देखिए सिर्फ उनके अंदर जो है सिर्फ वही जिंदा होंगे, எல்லாரும் வர முடியாது. सभी लोग उनके अंदर இந்த नहीं आ உலகத்துல पाएंगे। எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பு கிடையாது. ये संसार में सब लोग को उद्धार, யார் அவருடையவர்களோ जो उनके लोग हैं அவங்களுக்கு தான் நினைச்சது सिर्फ उनको இவங்க உயிர்ப்பிக்கப்படுவாங்க. ये जिंदा இது होंगे। இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தை. ये यीशु मसीह का वचन है। அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? तो हमें क्या करना ஒரு है? கூட்ட ஜனங்கள் हम एक झुंड लोग மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். ये मरकर दफना दिए गए होंगे, அவங்க திரும்பி वो फिर से உயிர்த்தெழுதல் வரும்போது जब जी उठाने का दिन आएगा, மறுரூபப்படுவார்கள் அவர்கள். तो वो रूपांतर பைபிள் होंगे। சொல்லுது ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கோம். कलाम कहता है कि एक झुंड लोग दफना दिए गए होंगे, அவங்க என்ன செய்வாங்க? और वो लोग क्या करेंगे? உயிர்த்தெழுதல் நடைபெறும் போது फिर से जब जी उठाना चलता रहेगा, அவங்க மறுரூபப்படுவார்கள். तो वो लोग जो मरे हुए थे वो रूपांतर हो जाएंगे। 1 கொரிந்தியர் 15:26 என்ன எழுதிருக்கு? देखिए उसमें 26वां அடே वचन में क्या சத்துரு लिखा है? யாரு? सबसे अंत बैरी जो नष्ट किया जाएगा மரணம். கடைசி சத்துரு மரணம். जो सबसे आखिरी बेरी जो नष्ट किया जाएगा இந்த वो मृत्यु மரணத்தை है। ஜெயிக்கிறதுக்காக वो मृत्यु को जीतने के இயேசு लिए கிறிஸ்து தன்னை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். यीशु मसीह खुद को मृत्यु के लिए सौंप दिए। உங்க மரணத்தை ஏன் மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு आज आपका मृत्यु और मेरा मृत्यु उन्हें वो उठाकर அவர் என்ன செய்தாரு? वो क्या किए? நமக்காக எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சிட்டாரு. वो हमारे लिए सब कुछ समर्पण कर दिए। பிலிப்பியர் फिलिपिस का किताब 3:10 படிக்க பாப்போம். 3:10 को पढ़ेंगे। फिलिपियों 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों से सहभागी होने के मर्म
को जानूं और उसकी मृत्यु की सामर्थ्य को प्राप्त करूं। வசனத்தை நம்ம இல்லாம சொல்ல முடியாது. ஆ. பாத்தீங்கன்னா பவுல் சொல்றாரு, देखिए पौलुस कहते हैं இப்படி நான் कि जिस तरह मैं அவரை उनको அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் उनके मृत्युजय की सामर्थ्य को பாடுடைய ஐக்கியத்தையும் और उनके साथ दुखों में सहभागी होके அறிந்திருக்கிறதுக்கும் होने के मर्म को जानूं அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி और उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं எப்படி ஆயினும் कैसे भी நான் மரித்திருந்து உயிர்த்தெழுவதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு मैं ये मरने से मरकर जी उठने के लायक बनने के लिए பாருங்க பவுல் பிரயாசப்படுறான். और ये उतना प्रयास कर रहे हैं இன்னைக்கு அதுவும் நம்ம அதான் பிரயாசப்படுறோம். और आज हम भी उसी चीज के लिए प्रयास कर நம்ம रहे हैं எப்படியாவது என்ன செய்யணுமா, हमें किसी भी तरह क्या करना है கிறிஸ்துவுக்குள்ள मसीह के अंदर கைவிடப்படக்கூடாது. हमें हाथ छुड़ाना नहीं चाहिए பெரிய செய்தி கிடையாது, ये बहुत बड़ा संदेश नहीं है சிம்பிள் சின்ன செய்தி. ये बहुत आसान கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார், जैसे मसीह मरकर जिंदा हुए நம்ம என்ன செய்யணும், हम भी क्या करना है உயிர்த்தெழுதுக்குள்ள வரணும். हम भी वो जिंदा होने में आना है இதுக்கு சிம்பிளான ஒரே ஒரு காரியம் தான், ये बहुत छोटी सी चीज है பாடுகளோட சேர்ந்து கிறிஸ்துவ ஆராதிக்கணும். ये तकलीफों और दुखों के साथ परमेश्वर का आराधना करना है பாடு இல்லாம ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை இல்ல. ये तकलीफों के बिना कोई इंसान को जिंदगी नहीं உலகத்தாரனுக்கு பாடு இருக்கும், ये दुनिया वालों को तकलीफ होंगे அவன் பாடோட செத்து போவான். और वो दुखों के साथ मर जाएगा நம்ம பாடோட ஜெயிப்போம். அல்லேலூயா, हम ये दुखों के साथ जीतेंगे ஆமென். आमेन நம்ம பாடோட ஜெயிப்போம். हम ये दुखों के साथ जीतेंगे அல்லேலூயா, हालेलुया ஏன்னா நம்ம தேவன் क्योंकि हमारा परमेश्वर ஜீவுட்டா ये जी उठा है உயிர்த்தெழுந்தார். जी उठे உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து जो जी उठे பைபிள் मसीह சொல்லுது இனி மரிப்பதில்லை. कलाम कहता है कि अब नहीं मरेंगे कभी இன்னைக்கு நமக்கு இதுதான் வேணும். आज हमें वही चाहिए நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் हम अगर उठा लिए जाने में பவுலே जाना है, போல் तो पौलुस के तरह பாடுகள் அணிவிக்க வேண்டும். பைபிள் சொல்லுது. हमें दुखों को उठाना चाहिए நீங்க இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு சொல்லும்போது பாடுகள் இருக்கும். ये सुसमाचार को जब आप लेकर जाओगे तो आपको दुखें आएंगी பாடுனா பட்னி கிடையாது, ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். ये दुखों का ये मतलब नहीं कि आप भूखा रहोगे சோறு இருக்கான்னு நினைக்காங்க. ये मत सोचो कि मेरे घर पे खाना नहीं உங்களுக்கு होगा எல்லாருக்கும் நல்ல துணி கொடுத்திருப்பாரு, वो सब कुछ होगा आपको अच्छा कपड़ा நல்ல मिलेगा வீடு கொடுப்பாரு, अच्छा घर मिलेगा உங்களை பைத்திய பிச்சைக்காரனா வைக்க மாட்டாரு. आपको भिखारी के तरह नहीं रखेंगे நினைக்காங்க. आप ऐसा मत ஒருவேளை सोचिए இன்னைக்கு வீடு இல்லாம இருக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாம், हो सकता है आज आपके पास घर ना होगा உங்க பிள்ளைகள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம். हो सकता है कि आपके बच्चे लोग ஆனா तकलीफ ஒரு में நாள் होंगे வருது ஆண்டவரு पर एक दिन आ रहा है உங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு பில்டிங்ல கொண்டு வச்சிருவாரு. परमेश्वर आपको बिल्डिंग में लेके जाकर சரியான रखेंगे। விசுவாசத்துக்குள்ள போகும்போது सच्चा विश्वास के अंदर जब आप आओगे பாடுகள் பவுல் என்ன பாடுபட்டா, तो पौलुस क्या दुख को उठाया இந்த உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்றான். ये जिंदा होने के बारे में वो प्रचार कर रहे நிறைய हैं பேர் அவனை எதிர்த்து பரியாசம் பண்றாங்க, बहुत सारे लोग उसे निंदा करते அவனை हैं அடிக்கிறாங்க, उसे मारते हैं எல்லாம் செய்யறாங்க. सब कुछ करते हैं அதெல்லாம் சகிச்சு वो सबको सहन करके சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறான். वो सुसमाचार को प्रचार இன்னைக்கு करता நம்ம है சொல்றோம் செய்யறோமா, நம்ம आज हम वो कर रहे हैं क्या இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். ये विश्वास हमारे अंदर होना ஏசு चाहिए கிறிஸ்து விதை यीशु मसीह जो बीज है நமக்குள்ள என்ன செய்யணும், हमारे अंदर क्या होना चाहिए பலன் கொண்டு வரணும். हमारे अंदर फल लाना பலன் चाहिए கொண்டு வராம वो फल नहीं लाएगा நம்ம என்ன ना, செய்ய முடியாது, हम क्या नहीं कर सकते விசுவாசத்துக்குள்ள ஓட முடியாது. विश्वास के अंदर नहीं चल அப்ப सकते பவுலுக்குள்ள இந்த ஒரு விசுவாசம் இருந்துச்சு, तो पौलुस के अंदर ये विश्वास था இந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கா? ये विश्वास हमारे अंदर है क्या இன்னைக்கு ஒரு பெரிய செய்தியே கிடையாது, आज बहुत बड़ा संदेश नहीं है சிம்பிள். बहुत आसान ஏசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார், यीशु मसीह जिंदा हुए நம்மளும் உயிர்த்தெழுதணும். हमें भी जिंदा होना है பாடுகளோட உயிர்த்தெழணும். वो तकलीफों के साथ जिंदा होना है பாடுன்னா சோறுலாம் கிடைக்க ஞாபகம் வச்சிருங்க. तकलीफ का ये मतलब नहीं कि आपको भूखा இந்த रहना पड़ेगा சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்கு பாடு வரும். ये सुसमाचार बताने के लिए आपको तकलीफें आएंगी இப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து आप अगर यदि कोई घर में जाकर கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான், हो सकता है कि वहां पर पति उद्धार पाया மனைவி होगा ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டா. पत्नी उद्धार नहीं पाई இந்த होगी சுவிசேஷம் சொல்லும்போது பாடு வரும். तो ये सुसमाचार जब आप जाकर बताओगे तो आपको बराबर ना? तकलीफें आएगी இந்த சுவிசேஷம் கொண்டு மனைவிட்ட புருஷன்ட்ட சொல்லும்போது பாடுகள் வரும். ये सुसमाचार को लेके जाते बताते टाइम आपको तकलीफें आएंगी புருஷன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டான், ये हो सकता है कि दूसरे घर में पति उद्धार न पाया हो மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான். पर पत्नी उद्धार पाया हो இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லும்போது உங்களுக்கு பாடுகள் और வரும். वहां जब आप ये सुसमाचार लेके जाओगे तो आपको तकलीफें आएंगी குடும்பமா ரட்சிக்க
ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. हो सकता है पूरा परिवार आपका उद्धार पाया हो பக்கத்து வீட்டுல போய் சூழ்ச்சியை சொல்றதுக்கு சில பாடுகள் வரும். और बाजू वाले के घर में जाकर सुसमाचार बताने में இதான் आपको तकलीफ கிறிஸ்துவுடைய है। பாடுகள். यही मसीह का जो दुख है। நீங்க சோறு கீறு கிடைக்கான்னு நினைக்க अब ये मत सोचो कि तकलीफों का मतलब है कि खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष நம்ம करेगा। எல்லாரும் எழுப்பி நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएंगे। பாத்துங்க, ஒரு மனுஷன் வந்து देखिए एक इंसान உயிர்த்தெழுதுற வல்லமை நமக்குள்ள வரணும். जिंदा होने का महिमा हमारे अंदर आना முத चाहिए। ஆதாம் மூலியமா மரணம் வந்துச்சு. पहला आदम के द्वारा मृत्यु आई இரண்டாம் ஆதாம் ஆகிய और दूसरा आदम இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக जो यीशु मसीह है उनके द्वारा நமக்கு என்ன வந்துச்சு? ஜீவன் வந்துச்சு. हमें जीवन आया है। இயேசு கிறிஸ்து தன் ஜீவனை கொடுத்து यीशु मसीह उनके जीवन को देकर உங்களை என்னை மீட்டெடுத்தார். आपको और मुझे छुड़ाया। நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब प्रार्थना करेंगे। இந்த பாட்டு என்ன பாட்டு எடுத்தியா? वो तेरी ஒரு ஆவிக்குரிய பாட்டு எடுத்து. वो तेरी स्तुति और आराधना। हाँ, वो तेरी स्तुति और आराधना। 26 தமிழ்ல இருக்குல்ல? 26 ஆ वो இல்ல, 26 தமிழ்ல. 26 ஆ? 26 என்ன பாட்டு அது? वो तेरी स्तुति आराधना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जहाँ को बर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको चाहो कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु आज पुनरुत्थान दिन को याद करने के लिए प्रभु आज याद किया है। प्रभु कब्रिस्तान के अंदर बड़ा चिन्ना डाल के प्रभु वो पत्थर का बांध के रखा, लेकिन ऊपर से स्वर्ग का दूध उतर के उनको तोड़ के प्रभु आप पुनरुत्थान में आया है। आज वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारा अंदर आना चाहिए। प्रभु पौल का एक विचार था, मसीह का साथ तकलीफ उठा के मैं कैसा भी पुनरुत्थान में जाना है, उठाने में जाना है। प्रभु आज हम लोग पे वही विचार देने के लिए विनती करता है। वो विचार, वो ध्यान हमारा दिन पार रात दिन हमारा अंदर रहने के लिए दया करो। आपका बच्चों लोग के बीच में वही आत्मा उतरने के लिए मैं विनती करता है। वही आत्मा, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य
हर भाई बहन के अंदर उतरना प्रभु जी। अभी आप कभी भी आ सकता है, हम लोग तैयार होना है। तैयार करने वाला पवित्र आत्मा ओ मेरा अंदर उतरना है, मांगो। हमको तैयार करने वाला पवित्र आत्मा ओ आज उतरना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमको तैयार करता है प्रभु, कोई इंसान नहीं है। पवित्र आत्मा हर भाई बहन का अंदर उठाने के लिए तैयार करता प्रभु जी। यीशु मसीह का अंदर था वही आत्मा आज मेरा अंदर आना प्रभु जी। धन्यवाद। सब लोग मांगो, मन का तोड़ो, ये बच्चा का मन का माप से प्रभु का अंदर रखो। प्रभु आपको जो जी उठाया वही आत्मा, वो जीवित आत्मा मेरा अंदर आना चाहिए, मेरा अंदर आना चाहिए प्रभु जी। हो मैं दुनिया का मौत का जीतना, दुनिया का सारे तकलीफ का जीतना, सारे बीमारी का जीतना प्रभु जी, संकट को जीतना। हालेलुया, हालेलुया। जीतने वाला वो आपका आत्मा यीशु मसीह का नाम से हर भाई बहन के अंदर उतरना है। छोटा बच्चों लोग के अंदर उतरना प्रभु जी, जवान बच्चों लोग के अंदर उतरना। वो अग्नि का फवर, आग का फवर, आग का फवर यीशु मसीह का नाम से हर भाई बहन के अंदर उतर रहा है। प्रभु आप बच्चों लोग यहाँ आया, सबको आशीष करो। जो नहीं आया उनको भी आशीष करना। ये बच्चों लोग घर में जाके ये वचन ध्यान करके रात दिन प्रभु आपका साथ साथ चलाने के लिए, आपका आत्मा प्रभु उनको चलाने के लिए आपका हाथ में देता है। प्रभु ये छोटा कलीसिया को प्रभु आप संभाल के आ रहा है और कलीसिया आगे बढ़ना है। बहुत लोग प्रभु ये जगह में आके उधार पाके कैपिटल लेके आपका नाम का प्रचार करने वाला बच्चा तैयार करना। पौल के अंदर जो आत्मा था वही आत्मा आज हमको उतरो हमारे अंदर प्रभु खड़ा रह के काम करने के लिए आपका हाथ में देता है। ये कलीसिया का आशीष करो। कलीसिया में प्रभु आपका बच्चों लोग जो जो मदद करता है, मदद करने वाला का आशीष करो। प्रार्थना करने के लिए करने वाला का आशीष करो। उपवास लेके प्रभु ये कलीसिया को संभालने वाला का आशीष करो प्रभु जी। हालेलुया। दान दे के, दशमांश दे के ये कलीसिया को संभालने वाला का आशीष करो प्रभु जी। सारे आशीष आपका बच्चों के अंदर भरपूर के रहना है, कम नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। 100 गुना आशीष आपका बच्चों का घर के अंदर उतरने के लिए यीशु मसीह का नाम से उतरने के लिए विनती करता है। बीमारी ओ कोई शरीर के अंदर रुकना नहीं चाहता प्रभु जी। सारे बीमारी, शैतान का बंधन, सारे मौत यीशु मसीह का नाम से दूर होना चाहिए प्रभु जी। आपका बच्चा लोग गवाही के रूप से प्रभु ये एरिया में जीवन बिता के ओह आशीष करो, आशीष करो। हर घर के अंदर आशीष उतरना प्रभु जी, हर घर के अंदर आशीष उतरना। यीशु मसीह का नाम से वो चमत्कार होना प्रभु जी। आमीन। आशीष करो, आशीष करो प्रभु जी। अब आशीष देने वाला खुदा है। सारे चीज से आशीष करो। काम का आशीष करो प्रभु जी, धंधा का आशीष करो, ओ पढ़ाई करना हो बच्चा लोग का आशीष करो। सबको आशीष देने वाला खुदा है, सबको दया करने वाला खुदा है, सबको ऊपर प्रेम करने वाला खुदा है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से मांग रहा प्रभु जी। किसी के भी प्रभु आप बेस छोड़ने वाला नहीं, आपको चरण में आने वाला का सबको प्रभु भरपूर के देने वाला खुदा है। अब आशीष करके आगे बढ़ो, पवित्र आत्मा से भर दो। एक कलीसिया का आप चलाना आपका हाथ में देता है। ये छोटा विनती का प्रभु यीशु मसीह का नाम से देता है। सुन के आप कबूल कर देना। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरे नाम में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को हमें परीक्षा में डालना परंतु बुराई से बचाना। तू ही राज और परम और महिमा सदा की। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्ययीशु, 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 धन्ययीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना परमेश्वर यीशु मसीह का कृपा, उनका शांत, उनका समाधान, उसका प्रेम, उसका ऐक्य अपना साथ उनका आगम तक पड़ा रहेगा। आमीन।